हाय, कम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब सब लोगों ने थोड़ा नोटिस किया ही होगा, यहाँ पे मैं हमेशा लेक्चर का नंबर लिखती हूँ। दिस इज नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द लेक्चर। सो इफ एट ऑल आपको रिवीजन करना है कि कौन सा लेक्चर आपका मिस हुआ था, कौन सा लेक्चर में आपको दिक्कत है, सो इट विल बी इजीली विजिबल ऑन द बोर्ड। ओके, अदरवाइज 5 मिनट बड़बड़ सुनो, बाद में पता चलता है अरे वो ये लेक्चर है। ओके, वैसा ना हो इसलिए बोल रही। Okay, so we have started the lesson. This lesson is simple as I told you, but require vector and minute details are there. You need to notice. ठीक है? तो अभी तक हमने क्या सीखा? Being alive. First property for being alive is growth, but there we use the word intrinsic growth. Right? अब growth के साथ साथ जो growth leads to development. And development leads to maturity. Zygote, growing cell, mature cell, zygote, mini mitosis, embryo, undifferentiated cell, callus, undifferentiated mass of cell, callus. It will differentiate to form tissue. Different tissue will work together undergoing the process of organogenesis to form organ and organ systems. Organ and organ system, right? And different organ system will develop into multicellular organism. This is growth, which is permanent, irreversible, increase in size, shape, mass, dry weight, protoplasmic content. देखो, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ये सेल के अंदर में समझ लो 2 माइटोकॉन्ड्रिया। न्यू बॉर्न बेबी सेल के पास है 2 माइटोकॉन्ड्रिया, मैच्योर सेल के पास है 10 माइटोकॉन्ड्रिया। इजंट इट? सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया। इजंट इट? सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ओके, सो सेल की ग्रोथ खुद की बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट। इसके पास 0.001 माइक्रोग्राम प्रोटीन, तो इसको पास 0.01 माइक्रोग्राम प्रोटीन। ओके, सो इंक्रीज इन मास, ड्राई वेट, मतलब वाटर अंदर आने की वजह से ये ग्रोथ नहीं हुई। दिस सेल डजंट स्वेल, स्वेलिंग इज डिफरेंट, ग्रोथ इज डिफरेंट, राइट? सो दिस इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, ड्राई वेट, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल। इट इज इरिवर्सिबल। ओके, ये बड़ा हो गया सेल, फिर से छोटा नहीं हो सकता। ओके, आप समझ लो तंग आ गए, 11th 12th ये हमारा सब पीछे पड़ना तंग आ गए। आपने सोचा चलो फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं, मिलेगा, निकाल देंगे, राइट? सो परमानेंटली ग्रोन, नाउ यू कैन नॉट रिवर्स, राइट? सो ग्रोथ इज परमानेंट, इरिवर्सिबल, increase in size, shape, form, dry weight, protoplasmic content. यहाँ तक हुआ। Number of cell followed by differentiation, organogenesis, morphogenesis, right? Okay. Then we discussed 2 type of growth: growth of unicellular, growth of multicellular. In growth of unicellular, only protoplasmic content, dry weight increases. No tissue formation, no organogenesis, no morphogenesis involved. But in multicellular, all these steps are involved. Write down. Write down. Growth is permanent, irreversible, increase in size, shape increase नहीं होता, बदलता है, राइट? साइज, शेप, फॉर्म, ड्राई वेट, साइज, शेप, फॉर्म, ड्राई वेट, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, size, shape, form, dry weight, protoplasmic content. In the bracket write down
in unicellular and multicellular. ये जो पार्ट है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के भी सेल में होता है. ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट में क्या लिखा अपन? क्या लिखा? इन यूनिसेल्युलर as well as multicellular organism. Bracket closed. लिख लिया? Second point लिखो. In multicellular, differentiation, organogenesis, morphogenesis, differentiation, organogenesis, morphogenesis, leads to development. Leads to development. Write down next one. In unicellular organism, यहां से यहां तक का डायग्राम, growth and reproduction are synonymous. Are synonymous. ब्रैकेट में लिख लो. म्यूचुअल एंड इंक्लूसिव प्रोसेसेस. म्यूचुअल मतलब एक के बाद ये हुआ तो ये होने वाला है. ग्रोथ हुई तो ये डिवीजन होगा. ये इमैच्योर सेल डिवीजन नहीं कर सकता. इट्स नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सेल डिवीजन. अभी बच्चा है, राइट? डिवाइड नहीं हो सकता. इन यूनिसेल्युलर इट इज म्यूचुअल एंड इंक्लूसिव. इन यूनिसेल्युलर, growth and reproduction are in the unicellular, growth and reproduction are mutual and inclusive processes. Second point. Next one. In multicellular, यहां से वहां तक. In multicellular, growth and reproduction are mutual but exclusive. ये पूरी ग्रोथ है, ये रिप्रोडक्शन नहीं है, राइट? अब ये ऑर्गेनिज्म के अगर दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो ये रिप्रोडक्शन है. सो फ्रॉम दिस टू दिस ओनली ग्रोथ. After growth, this to this, only reproduction. So in unicellular, growth and reproduction are mutual but exclusive. Are mutual but exclusive processes. Right? समझ रहे हो? Okay, चलो. Now next property. Being alive की next property reproduction, right? See, एक सेल का रिप्रोडक्शन, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन. अब 10th में, 9th में आपने रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकार सीखे होंगे, right? When we are talking about reproduction, right? So if I am talking about reproduction, उसके दो प्रकार सीखे थे आपने. One is asexual and other one is sexual. Write down. Sexual reproduction or sexual reproduction. Now we are starting property number 2 of being alive. Sexual reproduction or sexual reproduction. Right? अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपने बहुत सारे प्रकार देखे थे. याद करो, प्लामेरिया, स्पाइरोगायरा, म्यूकर, याद आ रहा है?
रिप्रोडक्शन नाम का लेसन था सीबीएसई 10th को, आईसीएसई वालों को भी था, राइट? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? लेट अस रिवाइज इन ब्रीफ. सी, ये म्यूकर है फंगस, राइट? ये फंगस का माइसेलियम, वो पांडी बुरशी फंगस, इसका ये ग्रोथ है पूरा, ब्रेड के ऊपर ग्रो हो रहा है. इसके ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे ऊपर, म्यूकर राइजोपस नाम है फंगस. इसके अंदर बनेंगे स्पोर. ये क्या होते हैं? स्पोर. स्पोर रिलीज होगा और फिर से जर्मिनेट होगा. ये ऑर्गेनिज्म ने स्पोर बनाया, स्पोर फिर से जर्मिनेट हुआ, फिर से रिप्रोडक्शन. फायदा क्या है? दिस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पोर which will travel along with air current, fall at somewhere. If conditions are favorable, it will go and germinate, giving rise to next generation. This is asexual reproduction by the process of spore formation. ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पोर फॉर्मेशन, राइट? ओके. और आपने एक देखा होगा स्पाइरोगायरा का डायग्राम याद आ रहा है? अमीबा का तो फेवरेट डायग्राम था, ड्रॉ करो कुछ भी. ये अमीबा पेंसिल्स, राइट? अब ये अमीबा का न्यूक्लियस जो है वो पहले 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों साइड से ऐसे अंदर आके चिपक जाएगा, एंड यू गेट 2 अमीबा. इज कॉल्ड बाइनरी फीजन. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा प्रकार बाइनरी फीजन. लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? और एक फीजन का प्रकार होता है मल्टीपल फीजन. मतलब पेट के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, पहले एक के अंदर बहुत न्यूक्लियाई बनते हैं और बहुत सारे टुकड़े होते हैं, मल्टीपल फीजन, राइट? देन रोज का रिप्रोडक्शन कैसे करते हो? स्टेम कटिंग से. रोज का रिप्रोडक्शन कैसे करते हो? स्टेम कटिंग से, राइट? ओके. सो स्टेम कटिंग से जो रिप्रोडक्शन होगा दैट विल बी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, गुलाबचा स्टेम कटिंग होता है ना, रोज के स्टेम कटिंग लगाते हो, नए प्लांट बन जाते हैं, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट? प्लानेरिया का याद आ रहा है कुछ? ये ऐसे प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है. ये लोअर एनिमल में पढ़ा होगा आपने. अगर इसके बॉडी के 3 टुकड़े हुए, ये ऊपर का, बीच का, राइट? तो ये हेड जो है वो नीचे ट्रंक बना लेगा, ये जो बीच का पार्ट है वो ऊपर हेड और नीचे ये बनाएगा, और नीचे वाला पार्ट ऊपर का स्ट्रक्चर बनाएगा. So one planaria undergo segments, टुकड़े, and each fragment will give rise to next generation. Each fragment give rise to next generation. ये प्रोसेस को हमने बोला था रीजनरेशन. ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन, बराबर? सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग से बनने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, राइट? ओके. और एक आपने सीखा होगा स्पाइरोगायरा का. समझ लो ये स्पाइरोगायरा का थ्रेड है, याद है? स्पाइरोगायरा का डायग्राम याद है? ये स्पाइरोगायरा का थ्रेड है. ये स्पाइरोगायरा का थ्रेड यहां से टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, फ्रैगमेंटेशन. राइट? सो दीज आर different types of asexual reproduction. Please write down. Reproduction are of 2 types: sexual reproduction or asexual reproduction. And it is found in living organism. Not a single living organism can reproduce. रिप्रोडक्शन करने वाला जिंदा होता है. ओके
please draw the diagram, draw the flow chart. Okay, wrote, chalo, come to NCERT, page number 4. Reproduction, likewise, a characteristic of living organism. Living organism can reproduce. Okay, अब देखिए एक शब्द की तरफ देखो. Living organism reproduction कर सकता है. The organism which can reproduce is living. जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज टू रिप्रोड्यूस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता ही है? नो. वन मोर, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन रिप्रोड्यूस इज ओनली लिविंग. नो. आप मैडम ऐसा क्या बोल रहे हो? ठीक से सुनो. Organism can reproduce. Living organism can reproduce. The one who can reproduce is living. But थोड़ा याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था हनी बी का वर्कर बी, स्टराइल म्यूल, खेचर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करते. समझ रहे हो? और एक एग्जांपल दे दूं. सी, यू माइट हैव मेट फ्यू कपल्स ऑफ होमो सैपियंस स्पीसीज. आपने आजू बाजू ऐसे अंकल आंटी देखे होंगे, ऐसे कपल्स देखे होंगे. दे आर लिविंग बट दे डोंट हैव किड्स. दे कांट रिप्रोड्यूस. दे हैव सम प्रॉब्लम, व्हाटएवर. दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं वो, लेकिन they can't reproduce because of some problem, whatever is that. You will discuss in MBBS, right? So those organisms are living but not having ability to reproduce. Worker bee, mule, hinni, some Homo sapien cannot reproduce, but they are living. But they are living. समझ रहे हो? राइट? चलो, सी. In multicellular organism, reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to those of parent. Multicellular organism, whenever produces next generation, and that next generation is more or less similar to the parent. Okay, simple भाषा में, Homo sapien का बच्चा, ह्यूमन बीइंग का बच्चा, ह्यूमन बीइंग ही होता है विदाउट फेल. मैंगो का सीड सो करो, मैंगो का ही पेड़ आता है विदाउट फेल. कभी सुना टाइगर को बिल्ली हुई? कभी सुना हो सकता है? इम्पॉसिबल. राइट? हाँ भाई. व्हाटएवर कलर, काला कलूटा, राइट, फेयर, ओके, मीडियम कलर, व्हाटएवर, वेरिएशन होगा लेकिन बच्चा मोर और लेस पेरेंट जैसा ही रहेगा और वही स्पीसीज का रहेगा. ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन, टाइगर का बच्चा टाइगर, राइट? ओके, टाइगर का बच्चा टाइगर, राइट? मैं टाइगर श्रॉफ की बात नहीं कर रही हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट होमो सैपियन organisms. Clear with that? Right? Simple. Living organism can reproduce, but the one who reproduces is only living. No. Right? Chalo, let's proceed. See. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. Generally, higher organism, higher plant show sexual reproduction. So, invariably, always we talk about that. But there is process of co-sexual reproduction. And now we have explained all this. Let us go. See, in lower organism like yeast, hydra, we observe budding. Right? Yeast का budding याद है ना? ये yeast है, एक सेल है yeast का. इसको नया बढ़ाता है यहाँ पे छोटा, फिर वो बड़ा होता है,
और यहाँ से डिटैच होता है तो हमको नया ईस्ट मिलता है। ईस्ट परफॉर्म बर्डिंग। हाइड्रा, हाइड्रा याद है? हाइड्रा के ऐसे टेंटेकल्स, यहाँ पे एक बेबी हाइड्रा आता है, दिस इज बर्ड। ये डिटैच हो गया, दो हाइड्रा, हाइड्रा का बच्चा हाइड्रा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा बदलाव आएगा, राइट? सो इंडोर ऑर्गेनिज्म यू कैन स्टडी। Fungi multiply, spread easily by million of asexual spore formation. Spore formation in yeast, spore formation in fungus. Budding in hydra, budding in yeast, budding in hydra, and these are types of asexual reproduction. In lower organism like yeast hydra, we observe budding. In planaria, flatworm, regeneration. We observe true regeneration, that is fragmented organisms regenerate their lost part of the body. Planaria के 3 टुकड़े किए तो head will develop lower body, lost body, tail will develop upper body. So each fragment can develop to new organism by developing the body which is lost. जो body टूट गई, निकल गई, वो regenerate करेगा, right? So that is regeneration. Fragmented organism regenerate a lost part of the body and become a new organism. The fungi, the filamentous alga, the protonema of moss, ये शब्द को अंडरलाइन करो, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस, वहां पे लिख लो पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स, पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है? ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में, और ऐसे लिखो, पार्ट मत लिखो, स्टेज, स्टेज, स्टेज इन ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल, स्टेज इन ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में की एक स्टेज, एक पार्ट है प्रोटोनेमा। व्हाट इज दैट? वी डिस्कस इन डिटेल इन लेसन प्लांट डे, ठीक है? सो ये शब्द आपको दिक्कत देगा, जस्ट होल्ड ऑन। इट इज अ स्टेज इन लाइफ साइकिल। जैसे एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में सीड होती है ना, वैसे ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में प्रोटोनेमा होता है, राइट? सो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस all easily multiply by fragmentation, right? ब्रायोफाइट का प्रोटोनेमा फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होता है, स्पाइरोगायरा का थ्रेड फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होता है, फंगाई का एक थ्रेड वो भी फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होता है, right? All easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular alga or amoeba, reproduction is synonymous to growth. For unicellular organism, reproduction is synonymous to growth. That is increase in number of cells, right? हमने multicellular organism में इसको भी growth बोला ना, one cell gives rise to many cell, right? यहाँ पे भी one cell gives rise to many cell, right? So that is synonymous to growth. That is increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. अभी हमने growth की definition लिखी, permanent, irreversible, increase in size, shape, form, number of cell, volume, protoplasmic content, dry weight. Right? That is what is the thing. Further, there are many organisms which do not reproduce. Mule, sterile worker bee, infertile human couples, जो कपल को बच्चे नहीं होते वो कपल, एक्सेट्रा. Hence reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. Hence reproduction is not a defining property of being alive. जो reproduce करता है वही जिंदा है,
ऐसा डेफिनेशन हम नहीं कर सकते. सो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक ग्रोथ इज यस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ओनली ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. बात को समझ रहे हो ना? आई रिपीट, reproduction is not performed by every organism, hence reproduction is not defining property of living organism. Along with that, intrinsic growth occur in every living organism, but extrinsic growth occurring organism, extrinsic growth performing structure is not living thing. So growth as well as reproduction defining property बहुत जरूरी, जो लाइफ को डिफाइन करते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन सी. Hence reproduction is also cannot be an all inclusive defining character of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproduction or self-replicating by itself. ये सब बराबर है, लेकिन non-living organism, non-living structure reproduction नहीं करता. Understood? Right? Sure. Next one. Another characteristic, metabolism. Chemical reaction, constructive chemical reaction, anabolism, destructive chemical reaction, metabolism. Right? ये defining property है क्या? Right? So we are talking about now the next criteria, that is metabolism. Write down third point. Growth हो गया, reproduction हो गया, right? Now we are talking about third one, third property of being alive, that is metabolism. What we wrote, metabolism is equal to anabolism plus catabolism. Anabolism plus catabolism. Right? See now. Within a cell, green cell, plant cell, photosynthesis, because chloroplast is present. Respiration, because mitochondria is present. Protein synthesis, because ribosomes are present. In the nucleus, DNA replication. All these chemical reactions occur within the cell. Right? This is metabolism. अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो ही सेल जिंदा है. अगर मेटाबॉलिज्म नहीं करता है तो वो सेल डेड है. राइट? सो मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन अभी मैंने आपको क्या बात बोली कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक डीएनए है. डीएनए ने रेप्लिकेशन किया और एक डीएनए से हमको एक और दो ऐसे दो डीएनए मिले. ये प्रोसेस को हमने क्या बोला? डीएनए रेप्लिकेशन. Isn't it metabolism? Yes. Right? Isn't it metabolic reaction? Yes. Right? Isn't it representing life? It is metabolic reaction. It is. It is representing life. It is metabolic reaction. It is representing life. बराबर? चलो दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये टेस्ट ट्यूब है, पीसीआर मशीन में रख रहे हैं हम. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने वाली, डीएनए रेप्लिकेशन करवाने वाली ये मशीन. इसके अंदर हमने एक डीएनए रखा, यहाँ पे हमने एक डीएनए रखा. राइट? ये डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और हमको दो डीएनए मिले. तो देखो ये क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन है? हाँ, पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा. राइट? ये क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन है? हाँ है. डीएनए रेप्लिकेशन ये सेल के अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है. ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, हाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन है. लेकिन दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेटिंग लाइफ. This metabolic reaction is not making the test tube alive.
इसने डीएनए बना लिया तो एक टेस्ट ट्यूब के 2 टेस्ट ट्यूब नहीं बनेंगे। ये सेल ने 2 डीएनए बनाए तो हमको एक सेल से 2 सेल जिनके पास 2 न्यूक्लियाई है वो बनेंगे। So this DNA replication is metabolic reaction as well as representing life. But this chemical reaction is merely a chemical reaction which is similar to this. ये DNA replication इसके जैसा ही है, but because of this chemical reaction, test tube doesn't become alive. ये chemical reaction की वजह से test tube जिंदा नहीं होता। Are you getting me? Right? So this is what is property. Every living organism perform metabolism, but few exceptions like DNA replication in PCR is not representing life. अच्छा चलो यही मीनिंग का पैराग्राफ पढ़ते हैं। All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small, big, belong to various classes, size, function. याद है ना मैंने बायोमोलिक्यूल का एक लेक्चर दिया था आपको। डिफरेंट बायोमोलिक्यूल, they are interacting within a cell, performing metabolic reaction, are constantly being made and changed into other biomolecule. CO2 plus water, glucose. ग्लूकोज के बना सुक्रोज, सुक्रोज stored was starch. Isn't it chemical? Chemical reaction होते रहता है. One chemical changes to other depending upon need of the organism. Right? See, these conversions are chemical reactions, are metabolic reaction. ये जो chemical बदलाव है, changes है, इसको हम बोलेंगे metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. हजारों chemical reaction सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते रहेंगे. There are thousands of metabolic reactions simultaneously occurring inside the living organism, be they unicellular or multicellular. DNA replication का प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, मल्टीसेलुलर में भी होता है. रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस हर सेल में होता है. राइट? ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ओके, 5 किंगडम याद है ना? मोनेरा, प्रोटिस्टा. बोलो बोलो मेरे साथ. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया. 5 किंगडम. सबके सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. No non-living objects exhibit metabolism. Right? ये टेस्ट ट्यूब अकेली कुछ नहीं कर सकती. उसके अंदर केमिकल डाल के पीसीआर में इतना सब किया तो, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब जिंदा नहीं हो सकती. So no living organism perform metabolism. आप बोलेंगे टेस्ट ट्यूब ना, टेस्ट ट्यूब जिंदा नहीं है, हमने उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हमने करवाया. टेस्ट ट्यूब जिंदा नहीं है. राइट? नो लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. राइट? ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, ये पूरा ये पीसीआर का जो डिवाइस है. राइट? इसको और एक शब्द हम यहां पे यूज करेंगे. इट इज सेल फ्री. देयर इज नो सेल. राइट? ये सेल है, ये पूरी प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है. ये डीएनए रेप्लिकेशन सेल फ्री सिस्टम में हो रहा है. राइट? चलो पढ़ते हैं आगे. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. सेल के बाहर, बॉडी के बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शन हम करवा सकते हैं. In cell-free system, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither living nor non-living. ये chemical reaction living जैसी है, but because of which the test tube is not becoming living. So it is not living
इट इज नॉट नॉन लिविंग। शब्द छल समझ रहे हो ना, कैसे एक एक शब्द के साथ खेलते हैं। दिस केमिकल रिएक्शन इज लाइक मेटाबॉलिक रिएक्शन, but it is not represented in life, right? Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, so all living organisms perform metabolic reaction is a true statement. ठीक से सुनो, all living organisms perform reproduction, is it true? No, right? Like that. See. Hence, while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro cell-free system, इसको और एक शब्द है, ये एक हो गया, दूसरा शब्द है इन विट्रो, इन ग्लास वेसल, याद है मैंने अंडरलाइन करके पहले लिख के दिया था, इन विट्रो। Hence, while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living but surely living reaction. ये reaction living है, लेकिन ये life को represent नहीं करते। Hence, cellular organization of the body is defining feature of life forms. Okay? So हाँ, metabolism defining feature है। चलो next one is consciousness. Okay, next property लिख लेंगे हम, लिख लो यहाँ पे fourth one, conscious. Conscious. Right. So on to next point, consciousness means you are aware of. Okay, मैंने जोक सुनाया तो आप हंसते हो, आपको बोर होता है, राइट? आपको रोना आता है, यू आर प्रेजेंट टू, कुछ गड़बड़ हुई भाग जाते हो, isn't it? ठंड बचती है, स्वेटर पहन लेते हो, गर्म हो रहा है किसी तरह, कूलर चलाते हो, you respond to stimulus because you are conscious. So living organisms are conscious, right? अब consciousness में क्या क्या आएगा देखो, जैसे मैंने बोला ठंड में हम कपड़े बदलते हैं, तो एनिमल क्या करते हैं? माइग्रेट होते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, हजार हजार किलोमीटर पैदल जाते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, isn't it? They are conscious. Plant, are they conscious? Are they respond to stimulus? टच मी नॉट का प्लांट देखा, जैसे लीफ को हाथ लगाओगे बेंड हो जाएगा, जैसे ही लीफ को हाथ लगाओगे बेंड हो जाएगा, राइट? सो व्हाट इज दैट? टच मी नॉट इज सेंसिटिव टू टच, बट ऑल प्लांट्स आर नॉट। फिर देखा आपने, एक कुंडे में प्लांट लगाओ और खिड़की के बाजू रख दो, प्लांट ग्रो होगा और सनलाइट की तरफ ग्रो होगा, प्लांट विल ग्रो एंड बेंड, isn't it? They are sensing light, isn't plant are sensitive, plant are conscious। और एक देखा, देखो मेरे क्वेश्चन का जरा जवाब देना, झिंडू के फूल कब मिलते बाजार में? समर में, हंस रहे हो ना, दिवाली में, विंटर में, बराबर, राइट? ओके, मोगरा कब आता है? मोगरा अभी आता है समर में। मैंगो कब खाते हो? मैंगो पल्प नहीं, फ्रूट, पल्प तो 12 महीने खाते हो, खाते रहते हो, वही काम है, सॉरी, हाँ, मैंगो समर, मेरीगोल्ड विंटर, शेवंती विंटर, मोगरा समर, isn't it? सीजनल ब्रीडर्स, सीजन के अनुसार रिप्रोडक्शन करवाने वाले सीजनल ब्रीडर्स। हाउ कम दे नो कि समर आ गया? हाउ कम दे नो चलो विंटर आ गया? कैसे पता चलता है प्लांट को? वो सेंस करते हैं ना, दे आर कॉन्शियस, दे सेंस द टेम्परेचर, दे सेंस डे लेंथ, डे लेंथ 10 घंटे का डे है, 12 घंटे का डे है, 14 घंटे का डे है, सनलाइट कितना घंटा अवेलेबल है, रात, नाइट, ड्यूरेशन क्या है, all these things are sensed by plant. They are seasonal breeders. Okay, remember, plant when sense
day length and night length, and accordingly reproduce. Day length, night length, सेंस करके रिप्रोडक्शन करने वाले उनको हम क्या बोलेंगे? प्लांट्स आर सेंसिटिव टू फोटो पीरियड. प्लांट्स आर सेंसिटिव टू फोटो पीरियड. कितने घंटे का डे है, कितने घंटे की रात है. प्लांट्स आर सेंसिटिव टू फोटो पीरियड. समझ रहे हो? राइट? चलो, आई एम रीडिंग द कंटेंट. सी, perhaps the most obvious and technically complicated feature of living organism is this ability to sense their surrounding or environment. Plants sense surrounding, their environment, and respond to their environmental stimuli, which could be physical. जो stimulus है वो physical होगा, right? Chemical और biological. Now what are the stimulus? See, touching rod को हाथ लगाया, physical stimulus, right? Okay. Plant को bright sunlight में रखा, वो yellow color का leaf हो जाता है. Temperature sensitive, sunlight sensitive, right? So they are sensitive to touch, physical. They are sensitive to temperature. They are sensitive to hormone, biological stimulus, right? See, मॉस्किटो को समझ जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे बैठा है. CO2 से अट्रैक्ट होते हैं, वो केमिकल स्टिमुलस. आप कहाँ पे बैठे हो? राइट नाउ मच्छर नहीं है, थोड़ी देर के बाद आना शुरू हो जाते. क्यों? आपने मैसेज बोर्ड डाला, आई एम हियर, प्लीज कम. नो, यू गिव आउट CO2, योर बॉडी टेम्परेचर इज वार्म, मॉस्किटो गेट अट्रैक्टेड, राइट? सो दैट इज व्हाट इज स्टिमुलस, राइट? सी, द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, physical, biological, chemical. We sense our environment through our sense organ, eyes, nose, mouth, touch, skin, right? Ear, they are all our sense organ. We sense the environmental condition by this, right? All organisms from prokaryote, the most complex eukaryote can sense and respond to environmental changes. अमीबा को भी अगर फूड मिलता है तो वो फेगोसाइटोसिस करता है ना. सो कैसे समझता है उसको कि फूड है? These are all stimulus को वो परसीव करते हैं, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं. फोटो पीरियड, अंडरलाइन, राइट डाउन. प्लांट सेंसिंग डे लेंथ with respect to night length and flower accordingly. Plant sensing day length, night length and flower accordingly, right, is photo period. ठीक है, अब डिटेल में सीखेंगे, हमको सीखना है, वो भी है. ठीक है, फोटो पीरियड. फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर. समर में फ्लावर आता है, विंटर में फ्लावर आता है. एनिमल में भी सीजनल ब्रीडिंग होता है. सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऑल एनिमल्स हैंडल केमिकल एंटरिंग इन देयर बॉडीज. आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट गया, डाइजेस्ट कर लिया. पॉइजन गया, माय गॉड, isn't it to respond to that, right? Okay. All organisms handle chemical entering in their bodies. अगर हमका गया तो यूज कर लेंगे, पॉइजन गया तो वॉमिटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा गया तो दिक्कत आएगी, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, राइट? All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself. All are conscious. Human beings are self-conscious. I exist. Who I am. Right? What mindset I have. What I am supposed to do. It's all who I am is only with Homo sapien, not with other organisms. All organisms are conscious. Homo sapien are self-conscious. Right? Are self-conscious. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism.
right? Consciousness become defining property of living organism. Okay, so अभी तक हमने जो अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखे, उसमें के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमको ध्यान में रखने हैं. सो अभी मैं सब लिख लेती हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वो देखते हैं. सब लिख लेते हैं. देखो, सी विल राइट डाउन कॉन्शियसनेस. स्टार्टिंग सीखते हैं. चलो, ग्रोथ, reproduction, metabolism, right? Growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. All organisms are made up of cell. One cell or many cell is cellular organization, consciousness, metabolism. इसमें के ये दो, right? These are defining properties at priority. Okay, ये आपका priority number 1 का आंसर है. Defining property without any exception, consciousness, cellular organization. Second priority इसको जाएगा, right? अगर ग्रोथ के साथ इंट्रिंसिक लिखा है, right, तो ये भी जाएगा. But reproduction in that way is occurring but not defining property, right? अब एक छोटी सी बात अभी, कॉन्शियसनेस. सी यू आर कॉन्शियस. अभी आप जाग रहे हो, आप सो रहे हो, कुछ भी हो, आप जाग जाते हो, कॉन्शियस. आप बेहोश हो, राइट? आप बेहोश हो, लेकिन आपको जोर से मैंने कुछ मारा या छुआ, आप पेन दिखाते हो, यू आर कॉन्शियस. कोमा पेशेंट, इज ही कॉन्शियस? इफ यू थिंक अबाउट इन डिटेल, coma patient can receive the stimulus but can't respond. Coma patient can receive the stimulus but can't respond. So partly they are conscious, but if coma continues, the patient will be dead. It's called brain dead. Brain dead organism मतलब brain काम नहीं कर रहा है, heart चल रहा है. Gradually heart is going to die, but that phase brain dead, अभी ब्रेन मर गया लेकिन हार्ट जिंदा है, वो कंडीशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं. मैंने क्या बोला? ब्रेन मर गया, हार्ट जिंदा है, मतलब पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा है, बाकी के ऑर्गन जिंदा है. ब्रेन मर गया मतलब ये फिर से जागने वालों में से नहीं है, ये धीरे 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 मरने वाला है. इट्स फॉर श्योर. बट राइट नाउ स्टेट है ब्रेन मर गया, हार्ट चल रहा है. ओके, ऐसे को क्या बोलेंगे बीच बीच वाले? If this process continue, the organism will be dead. तो अब हम क्या करते हैं? उसके eyes, उसका heart, उसका skin. Remember, 37 organs can be donated. Okay, isn't it wonderful? Obviously, you should go for legal methods, right? So see, brain dead. Right now उसको dead नहीं बोलेंगे क्योंकि metabolism चल रहा है, लेकिन बाद में वो मरने वाला है. कोमा में राइट नाउ उसका बॉडी जिंदा है लेकिन ब्रेन पार्टली काम कर रहा है. हार्ट अटैक आ गया, ब्लड सप्लाई रुक गया. ओके, तो ब्रेन थोड़ी देर काम चलेगा, फिर से बंद जाएगा. सो कौन सी डेथ इज डिफरेंट थिंग. ब्रेन डेथ से हार्ट डेथ होने वाली है, हार्ट डेथ के बाद भी ब्रेन डेथ होने वाली है, लेकिन हमको बीच में थोड़ा गैप मिल सकता है, राइट? ओके, लेकिन दैट इज नॉट लाइक एकदम क्वेश्चनेबल कि इसको जिंदा बोले कि मरने वाला, मर गए, वो मरने वाला है. Clear, right? So the person in coma is partly conscious. Okay, so let us complete. See, when it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. वेंटिलेटर लगाया वाला पेशेंट, कोमा में पेशेंट है,
उसको जिंदा बोले कि मर गया, ये बोल नहीं सकते। होमोसैपियन के लिए डिफाइन करना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ मेडिकल हेल्प। ओके, डायलिसिस पे जिंदा हो, पेस्टिकल पे जिंदा हो, वो निकाल दिया तो पक्का मरने वाला है, लेकिन अभी जिंदा है। Okay, so it is difficult to define for Homo sapien. We observe patient lying in coma in hospital, virtually supported by machine, which replace heart or lung. वेंटिलेटर है या हार्ट का पंपिंग है, आर्टिफिशियली किया जा रहा है, पेशेंट अभी जिंदा है, वो निकालने के बाद बोल नहीं सकते। The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patient who never come back to normal life, living or dead? Right now living, support nikal do, will be dead. Right? Okay? So these are defining properties of life. Please read each and every word. Each and every word. Okay? हमको शब्द छल करना है ये चैप्टर में. And we'll go for 1 line test. Right? Okay, so please read NCERT 2-3 times. Okay? See you then.